हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। जो नाम आज आप यहाँ देख रहे हैं, द पावर ऑफ साइलेंस, हम उस स्टोरी को आज कवर करेंगे। तो ये स्टोरी थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है एंड जितना सारा सेंटेंसेस का यूज़ हुआ है उस स्टोरी में, ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है एंड आपके नॉलेज को मतलब इंक्रीज़ करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा ये स्टोरी। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखें। हम पहले उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें एंड फिर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। चले बने रहिए हमारे साथ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसको बिना टाइम वेस्ट किए। द पावर ऑफ साइलेंस। Joe was an old man, aged 75 years. He lived very happily and formed a beautiful family. His children grew up and moved to different cities in pursuit of good career and future. He lived in a small village carrying the memories of his deceased wife. Joe had four grandchildren and they used to visit him during their holidays. And it was the vacation time, and Joe was eagerly waiting for the arrival of his grandchildren. He was preparing his home for the kids, cleaning the home, mowing the garden, rearranging the household items, buying the favorite foods, dresses for the children, etc. In the busy arrangements, he lost his favorite watch, old watch. The watch was gifted by his dead wife when their first child was born. Joe treasured the watch and it became his sole companion after his wife's death. He forgot the watch missing and was happy receiving the kids at home. It was only the next day, when he was about to take bath, he remembered that the watch was missing. He saw the watch last when he was arranging things in the barn. He was shocked and very upset. His grandchildren asked him why he was so dull and asked him what troubled him. Joe said, "Dear children, I lost the most precious watch I have ever had and I ever got in my life. It was gifted by your grandma and I lost it while cleaning the home. I feel like I'm missing my heart." Joe was on tears and the children promised him that they would search the watch for him. One granddaughter asked, "Grandpa, do you remember when you saw the watch last before it was missing?" Joe told, "I guess when I was cleaning the barn." The children decided to search for the watch in the barn. The barn was full of waste materials, books, scraps, broken furniture, etc. The children searched for more than 2 hours with help of Joe and a servant, but could not find it. Joe was completely shattered and asked the children to stop searching as they could not find anything. The kids were also too sad and consoled the grandfather. One grandson again moved to the barn, and Joe asked why he was going there again. The little boy requested others not to follow him and remain silent. While the others were little surprised, they still followed what he said. The little boy went to the barn and sat there in silence. The other children reached him and asked him what he was doing, and the little boy asked them not to make noise. He sat there for about 15 minutes and then rushed to his grandfather. Yes, he got the watch and happily gave it to Joe. He was surprised and asked how he was able to find it. The little boy replied, "I sat there without making a noise, and the barn was so silent. After a few minutes, I heard the tick tick sound and found the watch." Joe hugged him and thanked the little boy. This is the power of silence. If we stay calm, we can find the solution very easily. तो ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चले बने रहिए हमारे साथ एंड मैंने ट्राई की जितना मतलब हो सके
स्लोली उसको पढ़ने की ट्राई की मैंने, ताकि हर एक वर्ड आपके समझ में आ जाए एंड प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख लें, मतलब कैसा रीड किया जाता है एंड कैसा सेंटेंस, मतलब कहाँ स्टॉप किया जाता है, रीडिंग किस ढंग से रीडिंग किया जाता है उस इसलिए। तो चलिए आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन हम उसको कवर कर लेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे। एंड एक बात आपको बता दें कि ये वीडियो आई थिंक 16 नंबर हो जाएगा। उसके पहले हम 15 वीडियो डाल चुके हैं जो इतना इजी लैंग्वेज में मतलब एक्सप्लेन किया गया है एंड लैंग्वेजेस यूज़ भी हुआ है इजी। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल को विजिट करके उस वीडियोस को देख ले, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक लैंग्वेज सीखने के लिए, आपका स्किल जो है उसको डेवलप करने के लिए। तो पहले उन वीडियो को देख ले एंड फिर उस पे आए, ताकि हम धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसको आप मिस ना करें। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हम समझाने की कोशिश करते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस जो टाइटल है, पावर मतलब ताकत जो है, साइलेंस मतलब शांति बनाए रखने का और चुप रहने का जो पावर है, जो ताकत है, वो है। उस रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है। स्टोरी को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या हुआ है उस स्टोरी में। द फर्स्ट लाइन यहाँ हमारा, जो वॉज एन ओल्ड मैन एज्ड 75 ईयर्स। जो एक आदमी है, वॉज एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी था। एज कितना है? साल 75 साल, 75 ईयर्स हो गया। ही लिव्ड, वो रहता था, वेरी हैप्पीली, बहुत खुशी से, एंड फॉर्म्ड एंड बनाया ए ब्यूटीफुल फैमिली, एक अच्छा फैमिली, एक खूबसूरत सा फैमिली बनाया। हिज चिल्ड्रन ग्रू अप, उसके बच्चे ग्रू अप मतलब बड़े हो गए, एंड मूव्ड, एंड चले गए, मूव कर गए, टू डिफरेंट सिटीज़, मतलब दूसरे डिफरेंट सिटीज़ में चले गए। किस लिए? इन परस्यू ऑफ गुड करियर एंड फ्यूचर। गुड करियर मतलब अच्छा करियर एंड फ्यूचर बनाने के लिए, अच्छा अपना करियर बनाने के लिए दूसरे सिटीज़ में मूव कर गए। परस्यू जो होता है, जब हम कोई एक कोर्स करते हैं, जैसे समझ लो डिग्री का कोर्स करते हैं, तो उसको परस्यू कहा जाता है, हम परस्यू कर रहे हैं। तो इसीलिए जो गुड करियर है एंड फ्यूचर है उसको बनाने के लिए, परस्यू करने के लिए वो डिफरेंट सिटीज़ में मूव कर गए। ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज कैरिंग द मेमोरीज ऑफ हिज डिजीज्ड वाइफ। तो वह कहाँ रहता था? लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। ही लिव्ड, वो रहता था, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव पे, कैरिंग द मेमोरीज, अपना मेमोरीज लेके, कैरिंग मतलब उसके साथ मेमोरीज है, मेमोरीज लेके मतलब यादें लेके, मेमोरीज मतलब यादें, ऑफ हिज डिजीज्ड वाइफ, जो वाइफ मतलब अभी अभी गुजर गए, मर गए, अब दुनिया में नहीं रहे, उसकी वाइफ की जो मेमोरीज है उनको साथ लेके वो लिव कर रहा है, मतलब रहता है एक छोटे गांव में। जो हैड 4 ग्रैंड चिल्ड्रन, जो हैड मतलब जो क्या था 4 मतलब 4 ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते, एंड दे यूज टू, एंड दे मतलब वही पोते क्या करते थे? यूज टू विजिट मतलब उसको देखने आते थे, ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज, अपनी छुट्टी के दिन पे, अपनी छुट्टी के दिन में जो को देखने आते थे। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या हो गया, हम वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए एंड वर्ड का मीनिंग भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो देखिए उसको बिना स्किप किए। तो लाइन जो है, पहला लाइन हमारा दूसरा पैराग्राफ का, इट वाज द वेकेशन टाइम। ये टाइम क्या चल रहा था? वेकेशन मतलब छुट्टी का टाइम चल रहा था, छुट्टी का दिन चल रहा था। एंड जो वाज ईगरली वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। जो वाज ईगरली मतलब ईगरली होता है जो बेसब्री से इंतजार करना, ईगरली वेटिंग मतलब बेसब्री से इंतजार करना। तो जो वाज ईगरली वेटिंग, जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फॉर द अराइवल, अराइवल मतलब आने का मतलब आने का, ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके मतलब जो पोते हैं वो आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जो ने, बिकॉज वो मतलब हॉलीडेज पे विजिट पे आते थे। अब वेकेशन चल रहा है तो वो आएंगे, इसलिए वो ईगरली वेटिंग मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग, एंड वो ठीक ठाक कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग मतलब वो ठीक ठाक कर रहा था, हिज होम, होम को, फॉर द किड्स, उन बच्चों के लिए, क्लीनिंग द होम मतलब मतलब अपने घर को क्लीन कर रहा था। उसके बाद क्या कर रहा था? मोविंग द गार्डन। मोविंग होता है जो गार्डन पे हम जो ग्रास होते हैं और उसको मतलब क्लीन करते हैं, और ग्रास को मशीन के द्वारा मतलब काटते हैं, उसको मोविंग कहा जाता है। तो ऐसे गार्डन को भी क्लीन कर रहा है। रीअरेंजिंग द हाउस होल्ड आइटम्स, अपने घर के हाउस होल्ड आइटम, जो घर के आइटम्स है मतलब जो चीज़ें हैं जितने सारे, उसको रीअरेंज कर रहा था। रीअरेंज होता है जो अरेंज ठीक ठाक करके रखा था फिर ठीक ठाक कर रहा है, उसको रीअरेंज कहा जाता है। उसके बाद क्या है? बाइंग द फेवरेट फूड्स। बाइंग द फेवरेट फूड्स मतलब अच्छे मतलब जो फेवरेट मतलब प्यारे फूड्स है उनको बाई कर रहा है, ख़रीद के ले रहा है। एंड ड्रेसेस, एंड ड्रेस भी, कपड़े भी, फॉर द चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। तो उसके बाद यहाँ है कि
इन द बिजी अरेंजमेंट, आप जो जो टिक टॉक में जो बिजी था, जो अरेंजमेंट में बिजी था, ही लॉस्ट मतलब उसने खो दिया हिज फेवरेट वॉच, जो उसका प्यारा वॉच था, एक घड़ी था, ओल्ड वॉच जो बहुत पुराना था, उसको खो दिया। उसके बाद है इस पैराग्राफ में द वॉच वॉज गिफ्टेड, द वॉच वॉज गिफ्टेड, वॉच को गिफ्ट किया गया, वॉज गिफ्टेड मतलब गिफ्ट किया गया बाय हिज डेड वाइफ, उसके डेड मतलब मुर्दा वाइफ के द्वारा गिफ्ट किया गया था। कब? व्हेन देयर फर्स्ट चाइल्ड वाज बॉर्न, जब उनका फर्स्ट चाइल्ड का जन्म हुआ था, जब उनका फर्स्ट चाइल्ड का, फर्स्ट बच्चे का पहला बच्चा जन्म हुआ था, तब उसके वाइफ ने वो वॉच गिफ्ट किया था। उसके बाद है जो ट्रेजर्ड, ट्रेजर्ड मतलब होता है संभाल के रखना, तो जो ने उसको संभाल के रखा था द वॉच, उस वॉच को, एंड इट बिकेम, एंड वो हो गया मतलब ये वॉच हो गया हिज सोल कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी है, एंड आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ मतलब उसके वाइफ के मरने के बाद, आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ मतलब उसके वाइफ के मरने के बाद क्या हो गया, दिस वॉच बिकेम हिज सोल कंपेनियन, एक ही साथी हो गया, मतलब वही एक साथी है उसके वाइफ के मरने के बाद। ही उसके बाद उसका पैराग्राफ में ही फॉरगॉट द वॉच मिसिंग, वो जो वॉच खो गया था, घड़ी खो गया था, ही फॉरगॉट मतलब वो भूल गया, फॉरगॉट मतलब भूल जाना, मिसिंग, एंड वाज हैप्पी, एंड खुश था, रिसीविंग द किड्स एट होम, किड्स को रिसीव करने में, क्योंकि उसके जो पोते हैं वो घर आ रहे हैं, तो उसको रिसीव करने में हैप्पी हो गया, खुश हो गया, एंड वॉच जो खो गया उसको भूल गया। इट वॉज ओनली द नेक्स्ट डे, ये मतलब दूसरे दिन था, इट वॉज ओनली द नेक्स्ट डे, ये दूसरे दिन था, when he was about to take bath, when he was about to take bath, about to होता है जब हम कोई काम करने ही वाले हैं, उसको about to कहते हैं, तो when जब he was about to take bath, वो नहाने ही वाले हैं, वो नहाने ही वाले थे, तब उसको याद आया, मतलब he remembered, उसको याद आया that the watch was missing, के watch क्या हो गया, missing, घड़ी क्या मिसिंग हो गया। ही सो द वॉच लास्ट, ही सो द वॉच, सो मतलब देखा, देखा था उस घड़ी को, लास्ट मतलब कब, व्हेन ही वाज अरेंजिंग, जब वो अरेंज कर रहा था, टिक टाक कर रहा था, थिंग्स मतलब अपने चीज़ें, इन द बार्न, इन द बार्न मतलब बार्न में, बार्न होता है एक ऐसा घर जहाँ हम जानवरों को रखते हैं, टूटे फूटे जो चीज़ है उनको रखते हैं, फर्नीचर्स को रखते हैं, ऐसे घर को बार्न कहा जाता है, वेस्ट मटेरियल को रखते हैं। तो वो घर में जब टिक टाक कर रहा था, अरेंज कर रहा था, तो उस वक्त उसने लास्ट देखा अपने वॉच को। ही वॉज शॉक्ड एंड वेरी अपसेट, वो शॉक हो गया, एंड वेरी अपसेट बहुत उदास था, बहुत दुखी था। उसके बाद है हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन, उसके जो पोते हैं ग्रैंड चिल्ड्रेन आस्क्ड हिम, उसको पूछे व्हाई ही वाज सो डल। तो यही डल का जो मतलब होता है मतलब ज़्यादा दुखी हो जाना, ज़्यादा अपसेट हो जाना। तो ग्रैंड चिल्ड्रन उसको पूछ रहे हैं कि व्हाई ही वाज सो डल, क्यों इतना दुखी है, एंड आस्क्ड हिम, इसको पूछा व्हाट ट्रबल्ड हिम, कि क्या प्रॉब्लम है उनको, क्या हो गया। जो सेड, अब जो ने मतलब कहा, डियर चिल्ड्रन के प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रन प्यारे बच्चों, आई लॉस्ट मोस्ट प्रीशियस वॉच, मैंने सबसे मतलब कीमती जो चीज़ था, सबसे प्यारा जो चीज़ था, वॉच जो घड़ी था मेरा, वो मैंने खो दिया। आई लॉस्ट मतलब मैंने खो दिया, मोस्ट प्रीशियस सबसे ज़्यादा कीमती। आई हैव एवर हैड मतलब जो मुझे कभी था, जो घड़ी मुझे सबसे कीमती था, वो मतलब मैंने खो दिया। आई एवर गॉट इन माई लाइफ, एंड जो मुझे लाइफ में कभी भी मिला, कभी मिला मतलब लाइफ में ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ चीज़ें मिला था मेरे को, इतना मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उन, बिकॉज आप उनका वाइफ जो है वो गुजर गए, वो दुनिया में नहीं है, तो उनका दिया हुआ गिफ्ट को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो खो गया। इट वॉज गिफ्टेड, अब बच्चों को कह रहे हैं कि इट वॉज गिफ्टेड, ये गिफ्ट किया गया था बाय योर ग्रैंड मदर, तुम्हारे ग्रैंड मदर के द्वारा गिफ्ट किया गया था मुझको, एंड आई लॉस्ट इट, एंड मैंने उसको खो दिया, वाइल क्लीनिंग द होम, जब मैं मतलब अपने घर को क्लीन कर रहा था, क्लीनिंग द होम। आई फील लाइक, अब मुझे लग रहा है, आई एम मिसिंग माई हार्ट, में मैं हार्ट को मिस कर रहा हूँ, मैं मेरे हार्ट को मिस कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। जो वॉज ऑन टीयर्स मतलब जो अब मतलब रो रहे थे, ऑन टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, आंसू तो जो का आंसू आ गए, रो रहे थे, एंड द चिल्ड्रन प्रमिस, चिल्ड्रन ने प्रमिस कर दिया हिम उसको, दैट दे वुड सर्च, कि वो सर्च करेंगे, वो ढूंढेंगे द वॉच फॉर हिम, उस घड़ी को उसके लिए ढूंढेंगे। वन ग्रैंड डॉटर आस्क्ड, एक पोती ने पूछा ग्रैंड पा के, ग्रैंड पा डू यू रिमेंबर, क्या तुम मतलब तुम्हें याद है, व्हेन यू सो द वॉच लास्ट बिफोर इट वाज मिसिंग, व्हेन यू सो द लास्ट मतलब वॉच लास्ट, कब आपने देखा था उस घड़ी को लास्ट टाइम में, बिफोर इट वाज मिसिंग उसके मिसिंग होने से पहले कब देखा था। जो टोल्ड, जो ने कहा, आई गेस व्हेन आई वाज क्लीनिंग द बार्न, आई गेस मतलब मुझे लग रहा है, व्हेन आई वाज क्लीनिंग द बार्न, जब मैं बार्न को क्लीन कर रहा था, बार्न तो वही घर है जो मैंने पहले बता दिया, जो पुराना चीज़ें रखने वाले घर है, तो जब उस घर में मैं क्लीन कर रहा था तब मैंने लास्ट देखा। द चिल्ड्रन डिसाइडेड,
अब चिल्ड्रन ने बच्चों ने डिसाइड कर लिया टू सर्च फॉर द वॉच, कि उस घड़ी के लिए सर्च करेंगे, ढूंढेंगे इन द बार्न, उस बार्न को, उस घर को। द बार्न वाज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वह बार्न क्या था, घर था फुल ऑफ मतलब पूरा भरा हुआ था वेस्ट मटेरियल, जो बिना ज़रूरत की चीज़ें होते हैं उससे भरा हुआ था, जैसा कि बुक्स है, स्क्रैप्स है, ब्रोकन फर्नीचर, टूटा हुआ फर्नीचर जो है उससे भरा हुआ था। उसके बाद क्या, द चिल्ड्रन सर्च फॉर मोर देन 2 आवर्स, बच्चों ने सर्च किया, ढूंढा फॉर मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से ज़्यादा उस रूम में सर्च किया। विद द हेल्प ऑफ जो एंड सर्वेंट, किसके हेल्प से, जो के हेल्प से, एंड एक सर्वेंट एक नौकर के हेल्प से, मतलब सब मिलके ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड इट, बट मतलब उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। जो वॉज कम्प्लीटली शटर्ड, जो मतलब क्या हो गया, कम्प्लीटली पूरे तरह से क्या हो गया, शटर्ड होता है जो जो टूट जाना कहते हैं शटर्ड को, तो जो कम्प्लीटली मतलब पूरे तरह से टूट गया धुक से, क्योंकि वो घड़ी नहीं मिला सर्च करने के बाद। इसके बाद क्या, एंड आस्क द चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन को कहा टू स्टॉप सर्चिंग, कि आप तुम ढूंढना बंद कर दो, ढूंढना बंद कर दो। एज दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, कि कुछ नहीं मिल रहा है तो ढूंढना बंद कर दो, सर्च करना बंद कर दो। द किड्स वेयर ऑल्सो टू सैड, वो बच्चे भी बहुत दुखी थे, एंड कंसोल्ड हिज ग्रैंड फादर, एंड ग्रैंडफादर को क्या कंसोल कर रहे थे, कंसोल होता है किसी को शांति देना, ऐसे शांति दे रहे थे ग्रैंडफादर को। वन ग्रैंडसन, एक पुता ने क्या किया, अगेन मूव टू द बार्न, फिर कहाँ गया, मूव्ड मतलब मूव किया, टू बार्न मतलब बार्न की तरफ गया। एंड जो आस्क्ड व्हाई ही वाज गोइंग देयर अगेन, जो ने पूछा व्हाई ही वाज गोइंग देयर अगेन, कि वो क्यों फिर जा रहा है उसमें। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड, उस छोटा बच्चा ने रिक्वेस्टेड मतलब आदर्श को, दूसरे लोगों को मतलब उसके साथी को रिक्वेस्ट किया, नॉट टू फॉलो हिम, कि उसको फॉलो ना करने के लिए, कि तुम मेरे पीछे मत आओ, एंड रिमेन साइलेंट, एंड तुम चुप रहो, तुम सब क्या रहो, चुप रहो। वाइल द अदर्स वेयर लिटिल सरप्राइज, जब दूसरे जो है वो जब थोड़ा सरप्राइज थे, थोड़ा ताज्जुब थे उस मतलब बच्चे की फिर यहाँ जाने के लिए थोड़ा ताज्जुब हो रहे थे। दे स्टिल फॉलोड व्हाट ही सेड, फिर भी वो लोग फॉलो कर रहे थे उसके बात को। व्हाट ही सेड मतलब उसने कहा कि तुम सब साइलेंट रहो, चुप रहो, एंड मुझे फॉलो मत करो। द लिटिल बॉय वेंट टू द बर्न, लिटिल बॉय कहाँ गया, वेंट मतलब गया, गया टू द बर्न उस बर्न के उस घर में गया, एंड सेट एंड बैठा, सेट मतलब बैठा, सीट का पास्ट है सेट, बैठा देयर इन साइलेंस, चुपचाप बैठा रहा उस बर्न पे, उस घर पे। द अदर चिल्ड्रेन रिच्ड हिम, अब जो दूसरे जो चिल्ड्रन बच्चे थे वो भी पहुंच गए, रिच मतलब पहुंच गए, हिम मतलब उसके पास, एंड आस्क एंड जाके उसको पूछे व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहा है, उसको ऐसे पूछे कि वो क्या कर रहा है। एंड द लिटिल बॉय आस्क देम, लिटिल बॉय ने उनको कहा नॉट टू मेक नॉइज, कि तुम आवाज मत करो, साइलेंट रहो, नॉट टू मेक नॉइज मतलब तुम आवाज मत करो। ही सेट देयर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, ही सेट वह बैठा रहा अबाउट 15 मिनट्स, कितने मतलब मिनट्स, अबाउट 15 मिनट्स 15 मिनट यहाँ बैठा रहा। एंड देन रश टू हिज ग्रैंडफादर, रश होता है भाग के जाना, रश जो होता है उसके बाद भाग के टू हिज ग्रैंडफादर की तरफ भाग के गया। यस हाँ, ही गॉट द वॉच, उसने उस वॉच को, घड़ी को पा लिया। एंड हैप्पीली गेव इट टू जो, एंड खुशी खुशी से जो को दे दिया, जो ग्रैंडफादर था उसको दे दिया। ही वॉज सरप्राइज्ड, तो वो देख के मतलब सरप्राइज्ड हो गया, एंड आस्क्ड एंड पूछा कि हाउ ही वाज एबल टू फाइंड इट, कि उसको मतलब ये कैसे मिला, उस घड़ी को कैसे मिला, हाउ ही वाज एबल टू फाइंड इट, ये कैसे मिल गया उसको। द लिटिल बॉय रिप्लाइड, तो लिटिल बॉय ने, छोटा बच्चा ने अब रिप्लाई कर रहा है, आई सेट देयर, मैं बैठा था वहाँ, देयर मतलब वहाँ, विदाउट मेकिंग नॉइज मतलब बिना नॉइज किए, मतलब चुपचाप बैठा था, कोई आवाज़ किए बिना ही मैं यहाँ बैठा था। एंड द बार्न वाज सो साइलेंट, वो जो घर था, बार्न था, वह भी पूरा साइलेंट था, कोई आवाज़ नहीं था उसमें। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद, आई हार्ड, मैंने सुना, द टिक 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 मतलब जो जब घड़ी चलता है तो एक आवाज़ करता है टिक टिक टिक, तो वो कह रहा है कि आई हार्ड द टिक टिक साउंड एंड फाउंड द वॉच, मैंने उस आवाज़ को सुन लिया एंड उस घड़ी को मैंने पा लिया। जो हग्ड, जो ने उसको गले लगाया, हग्ड हिम गले लगाया, एंड थैंक यू कहा, एंड लिटिल बॉय को। तो उसके मॉरल यही है, दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस, कि यही साइलेंस मतलब शांति से रहने का पावर यही होता है। इफ़ वी स्टे काम, काम मतलब शांति से रहना, इफ़ वी स्टे काम, स्टे मतलब रहना, तो काम मतलब शांति, इफ़ वी स्टे काम, अगर हम शांति से रहे, वी कैन फाइंड, हम मतलब पा सकते हैं द सोल्यूशन वेरी इजीली, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको इजीली मिल जाएगा अगर हम शांति से रहे। तो हमको चाहिए कि कोई भी मैटर हो, कोई किसी तरह का भी मैटर हो, हमको मतलब बिना चिल्ला चिल्ली किए उसको मतलब शांति से उसको जज करना चाहिए, तब जाके हमको मतलब इजीली सोल्यूशन मिल जाएगा।
तो एक बहुत लंबा स्टोरी था एंड हमको एक सीख भी मिला, मॉरल लेसन भी दिया गया हमको। तो हमारा जो मेन एम एंड फोकस है उसको देखने के, उसके सेंटेंसेस का जो यूज़ हुआ है एंड वर्ड बाय वर्ड में समझाने की कोशिश की, तो उस वर्ड्स के मीनिंग को भी आप समझने की कोशिश करें, फिर उसको पढ़े 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ने की, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उस लैंग्वेज पे स्किल बनेंगे। ये आपका मतलब आप कितना एक्सपर्ट होना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना एक्सपर्ट होना चाहेंगे उतना टाइम ज़्यादा देंगे उस पे एंड उतना मतलब आप आगे बने रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो एक्सपर्ट बनिए उस पे, उसके ऊपर मतलब मास्टर बनिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये हमको इंस्पायर भी करता है वीडियो बनाने में, न्यू वीडियो लाने में। तो हम ट्राई करते हैं आपको सिखाने की, हम भी सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे एंड हम मतलब ट्राई करेंगे बेस्ट बेस्ट वीडियो लाने का।